Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 62 as I'll be continuing with Unit 16 adjectives. Students, please take out your English grammar book and turn the page to page number 62 as I'll be continuing with Unit 16 adjectives. Now, students, in my last video, I had completed exercise 1 and 2 and I'm sure all of you must have completed the exercise and revised them. And today I'm going to start with exercise 3, that is underline the adjectives in this poem. Now there's a poem given. Fine. And the name of the poem is Sam's Robot. First I'll read out the poem for you, then we'll be underlining the adjectives. Naughty Sam has a crazy robot, which is funnier than Sam. It wears a golden jacket and likes to eat red jam. Its eyes are small and beady, but it is not selfish nor greedy. It solves tough sums in a few seconds. It helps Sam in homework on every weekend. Sam feels lucky to have such toy. When they are busy together, there's only joy. Now students, before I start with this exercise, let's revise the adjectives. What are adjectives? Adjectives are describing words. They describe the noun. And it is not necessary कि adjectives वो noun के पहले आएंगे. Noun के पहले भी आ सकते हैं और noun के बाद में भी आ सकते हैं. Fine. So आप ये मत सोचना. Because इस poem में noun के पहले भी adjectives हैं और noun के बाद भी I'll explain it. And what do they describe? They tell us about the shape, color, size, quality, quantity, number of a noun. है ना. हमें नाउन के वो शेप के बारे में, साइज के बारे में, कलर के बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. सो फाइन, I'll be now doing exercise 3. And exercise 3 is underline the adjectives in this poem. Fine. Now I've read the poem. Once again I'll read out the poem for you. Naughty Sam has a crazy robot, which is funnier than Sam. It wears a golden jacket and likes to eat red jam. Its eyes are small and beady, but it is not selfish nor greedy. It solves up sums in few seconds. It helps Sam in homework on every weekend. Sam feels lucky to have such toy. When they are busy together, there's only joy. Fine. Now first I'll write the first line. Naughty Sam has a crazy robot, which is funnier than Sam. So बेटा ये पोएम की फर्स्ट 2 लाइन्स हैं. Naughty Sam has a crazy robot which is funnier than Sam. Now हमें क्वेश्चन में करना क्या है? We need to underline the adjectives. Adjectives क्या है?
words which describe the noun. And as said earlier, it is not necessary कि adjective noun के पहले ही आएंगे, वो noun के बाद में भी आ सकते हैं. तो first line, naughty Sam. कौन सा word Sam को describe कर रहा है? Sam के nature को describe कर रहा है naughty. So naughty क्या हुआ? Adjective. Please underline the first word of the first line, that is naughty. Naughty किस noun को describe कर रहा है? Sam. Sam is the name of a boy और ये boy के quality बता रहा है कि boy कैसा है? Boy naughty है. And you can see naughty इधर noun के पहले आया. So naughty Sam has a crazy robot. और second adjective इसमें कौन सा है? Crazy. ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रोबोट नाउन है ना? और नाउन को कौन सा बेटा एडजेक्टिव है डिस्क्राइब कर रहा है? क्रेजी. ये क्वालिटी बता रहा है कि रोबोट कैसा है? रोबोट क्रेजी है. सो फर्स्ट लाइन में देयर आर टू एडजेक्टिव्स, नॉटी एंड क्रेजी. फाइन. नॉटी सैम की क्वालिटी है कि सैम बहुत नॉटी है, उसका नेचर है. ये सैम को कौन सा? सैम नाउन है और उसको कौन सा एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है? नॉटी. देन द सेकेंड वन इज क्रेजी रोबोट. क्रेजी किसको डिस्क्राइब कर रहा है बेटा? क्रेजी रोबोट को डिस्क्राइब कर रहा है. रोबोट नाउन है और उसकी क्वालिटी कौन सा एडजेक्टिव बता रहा है? क्रेजी. सो फर्स्ट लाइन में आपने क्या अंडरलाइन किया? नॉटी एंड क्रेजी. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड लाइन. Which is funnier than Sam? है ना? और क्रेजी रोबोट जो है किससे ज्यादा फनियर? फनियर देन सैम. तो ये जो फनियर है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? क्रेजी रोबोट को. ये फनियर, दिस इज अगेन एन एडजेक्टिव जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रोबोट की. मतलब सैम तो फनी है ही, लेकिन फनियर. अब बेटा अभी इन द नेक्स्ट यूनिट आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कंपैरिजंस, है ना? उसमें मैं आपको 3 डिफरेंट डिग्रीज पढ़ाऊंगी, है ना? फनी, पॉजिटिव डिग्री एंड उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री जो उससे थोड़ी ज्यादा होती है, एंड सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे ज्यादा होती है. तो जिनके लास्ट में ER लगता है या जिनके पहले मोर लगता है वो कंपैरेटिव डिग्री है. सो फनियर मीन्स एक, मतलब फनी तो मतलब फनी है, उससे ज्यादा को हम क्या बोलेंगे? फनियर. दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. सो फनियर भी एडजेक्टिव. और एक किसको डिस्क्राइब कर रही है? क्रेजी रोबोट. कि क्रेजी रोबोट इज फनियर देन सैम. सैम इसका मतलब सैम तो फनी है, लेकिन क्रेजी रोबोट उससे भी ज्यादा फनी है. सो फर्स्ट 2 लाइन्स में आपके एडजेक्टिव्स क्या है? नॉटी, अंडरलाइन नॉटी, बिकॉज ये नाउन सैम को डिस्क्राइब कर रहा है. सेकेंड एडजेक्टिव है आपका क्रेजी. ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रोबोट को. और सेकेंड लाइन में जो एडजेक्टिव है दैट इज फनी. फाइन. नाउ the third line. It wears a golden jacket and likes to eat red jam. Now, the third line of the poem. It wears a golden jacket. As said, जितने भी colors हैं वो क्या है? एडजेक्टिव है. ऑल दी कलर्स आर एडजेक्टिव. अब ये गोल्डन किसका कलर है? जैकेट का. जैकेट नाउन है और कौन सा कलर जैकेट को डिस्क्राइब कर रहा है? गोल्डन. जितने भी कलर्स होंगे वो सब क्या है बेटा? एडजेक्टिव है. सो गोल्डन क्या हो गया? दिस इज द एडजेक्टिव. गोल्डन क्या है? एडजेक्टिव. इट वेयर्स अ गोल्डन जैकेट. एंड ऑलवेज रिमेंबर एडजेक्टिव जो है नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो जितने भी कलर्स हैं वो क्या है? एडजेक्टिव. सो इट वेयर्स अ गोल्डन जैकेट. गोल्डन क्या है? एडजेक्टिव. एंड लाइक्स टू ईट रेड जैम.
जैम का कलर कैसा है? रेड, है ना? तो कौन सा कलर जैम को डिस्क्राइब कर रहा है? रेड. सो रेड क्या है? एडजेक्टिव. फाइन. सो इट वेयर्स अ गोल्डन जैकेट एंड लाइक्स टू ईट रेड जैम. सो गोल्डन जैकेट का कलर है, जैकेट को डिस्क्राइब कर रहा है, गोल्डन एडजेक्टिव है. रेड जैम का कलर बता रहा है, जैम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो रेड क्या है? एडजेक्टिव. फाइन. सो आई होप आप लोग ने फर्स्ट 4 लाइन्स पोएम में एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज these 4 lines and write the next 5th line. Its eyes are small and beady, but it is not selfish nor greedy. Its eyes are small and beady, है ना? रोबोट की आईज क्या है? नाउन है. आईज को कौन से 2 वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं? एज सेड अर्लियर कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके एडजेक्टिव नाउन के पहले आए, वो नाउन के बाद में भी आ सकते हैं. यहाँ पे आईज को कौन से 2 वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं? स्मॉल. स्मॉल आईज का साइज बता रहे हैं एंड बीडी शेप बता रहे हैं. बीडी जानते हो ना, बीड्स को कहते हैं, है ना? जो गोल गोल मोती जैसे होते हैं, है ना? बीड्स, है ना? जिसकी माला बनती है. तो बीड मोतियों के जैसे गोल गोल, है ना? दाने जो होते हैं उनको बीड्स बोलते हैं. और आईज कैसी हैं? स्मॉल एंड बीडी, गोल मोतियों जैसी आईज हैं. तो आईज का जो शेप और साइज बता रहे हैं वो कौन से 2 एडजेक्टिव्स हैं? स्मॉल एंड बीडी. स्मॉल साइज बता रहा है, बीडी शेप बता रहा है. किसका? रोबोट की आईज का. सो 2 एडजेक्टिव कौन से हैं? स्मॉल एंड बीडी. देन बट इट इज नॉट सेल्फिश नॉट ग्रीडी. आप रोबोट की क्वालिटी कौन से 2 वर्ड्स बता रहे हैं? सेल्फिश एंड ग्रीडी, है ना? इट किसके लिए यूज हुआ है? रोबोट के लिए. और उस रोबोट की क्वालिटी कौन से 2 वर्ड्स बता रहे हैं? सेल्फिश एंड ग्रीडी. सो प्लीज अंडरलाइन सेल्फिश एंड ग्रीडी. फाइन. स्मॉल साइज बताया रोबोट की. बीडी आइज का शेप बताया. रोबोट की आइज का जो साइज है वो स्मॉल है और शेप कैसा है? बीडी, मोतियों की तरह गोल, है ना? एंड उसकी जो क्वालिटी है वो कौन से वर्ड्स बता रहे हैं? सेल्फिश एंड ग्रीडी. सो अंडरलाइन. नाउ I hope all of you have written. Now I'm going to erase this 5th and 6th line and write the 7th line of the poem. It solves tough sums in a few seconds. It helps Sam in homework on every weekend.
Now, 7th और 8th line. It solve tough sums. Sums noun है और उनको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? टफ. तो टफ क्या है? एडजेक्टिव. इट सॉल्व्स टफ. टफ मतलब डिफिकल्ट. डिफिकल्ट को हम टफ बोलते हैं. सो इट सॉल्व टफ सम्स इन अ फ्यू सेकेंड्स. फ्यू क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है ना? हाउ मेनी सेकेंड्स? फ्यू सेकेंड्स. सो फ्यू किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सेकेंड्स को. सो फ्यू क्या है? एडजेक्टिव. देन इट हेल्प्स सम इन होमवर्क ऑन एवरी वीकेंड. एवरी अगेन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द वीकेंड, है ना? सो इट सॉल्व्स टफ सम्स. टफ किसको डिस्क्राइब कर रहा है बेटा? सम्स को. सो टफ क्या हो गया? एडजेक्टिव. इन अ फ्यू सेकेंड्स. फ्यू क्वांटिटी बता रहा है तो सेकेंड्स की. तो फ्यू एडजेक्टिव एंड देन एवरी वीकेंड क्या अगेन बता रहा है नंबर. फाइन. सो टफ, फ्यू एंड एवरी. अंडरलाइन these adjectives. Now the last two lines of the poem. Sam feels lucky to have such toy when they are busy together there's only joy. Now, last two lines. Sam feels lucky to have such toy. How does he feels? Lucky. Lucky क्या है? Adjective. It is describing the toy, है ना? Then when they are busy together, there's only joy. So, Sam feels lucky to have such toy when they are busy together. Busy, again adjective, thus only joy. So beta इसमें last two lines में lucky and busy, these are two adjectives. Fine. So please underline these adjectives. And with this we have finished our exercise 3, that is underline the adjectives in this poem. और बेटा आपको बस ये याद रखना है कि जो adjectives हैं वो describing words हैं. They describe the noun, है ना? They tell us about the shape, size, color, quantity, quality of the noun. So जो भी describing words हैं वो क्या हैं बेटा? Adjective. So I hope all of you have done this poem. Now I'm going to erase this and we are going to start with exercise 4. Now, exercise 4 is write any two nouns which can use
एडजेक्टिव्स। अब बेटा कुछ एडजेक्टिव्स दिए और उनके आगे हमको कोई भी नाउन लिखने हैं जिनको वो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। फाइन। सो द फर्स्ट वन इज शाय। और जो शाय है ये कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है? शाय, सबको शाय पता है ना, शाय किसको बोलते हैं? कुछ लोग जो बहुत शर्माते हैं, जिनको बहुत शर्म आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शाय। तो शाय के लिए अब हमको सूटेबल नाउन लिखना है जिसको हम शाय क्या कर सकते हैं, जिसको शाय, जिन नाउन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो शाय किसको हम गर्ल को कर सकते हैं, है ना? शाय गर्ल, शाय बॉय। और सबसे ज्यादा कौन शर्माता है? ब्राइड। ब्राइड जानते हैं ना, दुल्हन। जो नई दुल्हन होती है वो बहुत शर्माती है ना, बिकॉज शी इज न्यू टू द प्लेस। तो शाय हम किस किस नाउन के लिए यूज कर सकते हैं? हम गर्ल के लिए यूज कर सकते हैं, हम ब्राइड के लिए यूज कर सकते हैं, कोई बॉय के लिए भी, कोई लड़का बहुत जो शर्माता उसके लिए भी हम शाय यूज कर सकते हैं। सो प्लीज राइट गर्ल एंड ब्राइड इन द टू ब्लैंक्स। जो शाय है, शाय गर्ल हम बोल सकते हैं। शाय किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल। गर्ल के बारे में बता रहा है कि वो बहुत शर्मीली है। शाय ब्राइड, एंड सबसे ज्यादा तो कौन शर्माता है? दुल्हन शर्माती है, और दुल्हन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राइड। सो ये दो नाउन्स, हमको खाली दो नाउन्स लिखने हैं। If you wish, you can write more. You can write shy boy, shy person, shy man, है ना? So shy girl and shy bride, है ना? तो shy किन दो nouns को describe कर रहा है? We have written girl, shy bride. Fine. Now, shy मतलब शर्माना. Okay. Now. The second adjective is sweet. अब sweet मतलब मीठा। स्वीट के हम बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं। एक तो टेस्ट से स्वीट होता है, और कुछ लोगों का नेचर स्वीट होता है। somebody is sweet to look at, है ना? तो स्वीट हम अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकते हैं ना। कोई खाने की चीज है तो हम स्वीट, अगर हम खाने की चीज यूज कर रहे हैं तो हम स्वीट फ्रूट, स्वीट एप्पल, स्वीट मैंगो, स्वीट, है ना? अगर कोई खाने टेस्ट जिसका मीठा है, मीठा अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं जो स्वीट है ना? स्वीट रसगुल्ला, स्वीट गुलाब जामुन, है ना? स्वीट मैंगो, स्वीट पपाया। तो आप एक तो स्वीट मैंगो कर, है ना? मैंगो कितनी बार सार भी होता है, खट्टा भी होता है, कितनी बार स्वीट भी होता है। सो स्वीट एक हम टेस्ट के हिसाब से जाते हैं। Then the other sweet is somebody is sweet to look at, somebody is sweet by nature, तो उसके लिए sweet person, sweet baby, है ना? So आप स्वीट को अलग अलग उसमें आप यूज कर सकते हो। So आपने एक स्वीट किसके लिए किया? एक मैंगो के लिए यूज किया। और हम एक स्वीट किसके लिए यूज करते हैं? कहते हैं ना, द बेबी वॉज वेरी स्वीट, द बेबी इज वेरी स्वीट। सो कोई जो दिखने में बहुत स्वीट हो, प्यारा हो, उसको भी हम स्वीट बोलते हैं। अगर खाने की चीज है तो उसके लिए आप मैंगो बोल सकते हो। कोई भी मीठी चीज, है ना? स्वीट टॉफी, है ना? स्वीट सिरप जानते हो ना? आप सिरप भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। स्वीट बेबी, इफ यू विश, लेट्स स्वीट सिरप, स्वीट बेबी, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। स्वीट के डिफरेंट यूज है ना? अगर कोई खाने पीने की चीज है तो उसके लिए आप कोई भी खाने पीने की चीज, इफ समबडी इज स्वीट टू लुक एट, है ना? कोई छोटा प्यारा सा बच्चा, तुम कहते हैं ना बेबी सो स्वीट, ऐसे मुंह से निकलता है कि नहीं? सो स्वीट, है ना? puppy, the puppy is so sweet, the kitten is so sweet. So sweet depends, आप किस चीज को देख के बोल रहे हो, किस नाउन के लिए आप यूज कर रहे हो। कोई खाने की चीज के लिए यूज कर सकते हो, और क्या कोई देखने में बहुत प्यारा हो उसको भी हम बोलते हैं सो स्वीट। निकलता है कि नहीं मुंह से? किसी किटन को देखा, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, किसी
रैबिट के बेबी को देखा, रैबिट को देखा तो सो स्वीट ऐसा निकलता है. सो आप डिपेंड करता है कि आप स्वीट किसके लिए यूज कर रहे हैं. सो you can write anything: sweet mango, sweet baby, sweet kitten, sweet puppy, sweet syrup, कुछ भी, sweet रसगुल्ला है ना, sweet laddu, anything your wish. So I hope all of you have written. Now I'm going to erase this and write the third one. सार. The third adjective is सार. और सार जानते हैं ना, खट्टी चीज को बोलते हैं. सार जो है, जो कोई बहुत खट्टी चीज हो, बहुत खट्टी, तो सार. सबसे पहले तो खट्टा क्या होता है? लेमन. सार लेमन. देन सब आंवला देखा है ना, आप सार आंवला भी लिख सकते हो, AMLA आंवला. देन यू कैन राइट सार ऑरेंज. कभी कभी ऑरेंज भी बहुत खट्टा होता है. देन सबसे खट्टा क्या होता है? टैमरिंड. टैमरिंड जानते हैं ना आप किसको बोलते हैं? इमली को बोलते हैं. तो इफ यू वांट, आप टैमरिंड हटा के आप इसकी जगह ऑरेंज भी लिख सकते हो, आंवला भी लिख सकते हो, AMLA आंवला, है ना. सार. कैचअप, कभी कभी कोई कैचअप में बहुत ज्यादा विनेगर होता है तो वो भी सार होता है. तो आपके ऊपर है, जो भी आपको खट्टा लगे उसको आप सार, SOUR, सार मीन्स खट्टा, आप उसको यूज करते हैं. तो सार लेमन, सार tamarind. Fine. So please write now. The fourth one is large. Large जानते हो ना, something which is very big, जो बहुत बड़ा हो. तो large palace. पैलेस जानते हो ना, जो किंग के महल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. सो लार्ज पैलेस, बहुत बड़ा है, लार्ज पैलेस. देन लार्ज, कुछ भी आप यूज कर सकते हो. लार्ज रूम, लार्ज बॉक्स, लार्ज ग्राउंड, लार्ज ट्री, है ना. आप कुछ भी आप यूज. लार्ज मीन्स समथिंग विच इज वेरी बिग, है ना. कोई भी चीज जो बहुत बड़ी हो उसके लिए आप लार्ज यूज करते हैं. सो लार्ज हमने यहाँ पे क्या यूज किया? पैलेस, है ना. लार्ज हाउस, लार्ज ग्राउंड, लार्ज फील्ड, लार्ज ट्री, लार्ज रूम. कोई भी चीज जो बहुत बड़ी हो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? लार्ज. फाइन. लार्ज आप किसको यूज कर सकते हो? कौन से नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए? लार्ज बॉक्स, है ना. कोई बहुत बड़ा बॉक्स है तो हम क्या बोलते हैं? बस अ लार्ज बॉक्स, है ना. आई सॉ अ लार्ज ग्राउंड, है ना. देयर वाज अ लार्ज ट्री इन द गार्डन. हाँ. देयर वाज अ लार्ज रूम इन द हाउस. तो आप लार्ज, कोई भी चीज जो बहुत बड़ी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज कर सकते हो. और बेटा लार्ज का ऑपोजिट हम टाइनी. टाइनी मतलब बहुत छोटा, है ना. टाइनी मतलब बहुत छोटा. तो टाइनी एंड. एंड जानते हो ना, चींटी. चींटी कितनी टाइनी, छोटी सी होती है. टाइनी एंड, है ना. उसके बाद टाइनी और क्या होता है? और बहुत छोटी सी कोई चीज जो आप टाइनी. टाइनी बटन, कुछ भी जो साइज में बहुत छोटा है. टाइनी माउस, टाइनी रैट. तो कुछ भी जो साइज में बहुत छोटा है उसको हम क्या बोलेंगे? टाइनी. लार्ज का ऑपोजिट एक्चुअली तो ह्यूज भी होता है. ह्यूज भी बहुत बड़ा. टाइनी का ऑपोजिट ह्यूज होता है, बट लार्ज का स्मॉल होता है. तो आपको मैं समझाने के लिए कि अगर टाइनी याद नहीं हो कि मतलब ह्यूज मतलब बहुत बड़ा और टाइनी मतलब बहुत छोटा.
So tiny ant आपको पता है ना चींटी कितनी छोटी होती है साइज में. So tiny ant, tiny button. So students, today I have finished exercise 3, that is underline the adjectives of the poem and the 5 nouns for the given adjectives. मैंने exercise 4 के first 5 I have explained and done. And the remaining 3 adjectives, I'll be writing suitable nouns for them in my next video. That's all for today. Do revise the taught exercise. Thank you, students. Have a good day ahead.